یعنی کچھ علم غیب حضور علیہ السلام کی خاصیت کیا ہے؟ جتنا علم حضور علیہ السلام کو ہے اتنا علم تو زید کو ہے، امر کو ہے، بلکہ پاگل کو ہے، بچے کو ہے اور جمی حیوانات کو، یعنی 4 پیر والے جانوروں کو جتنا علم ہوتا ہے اتنا علم رسول اللہ کو ہے۔ یہ کتاب ہے، شک ہو تو آپ آ کر دیکھ لیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کتابیں ہم چھاپتے ہیں تو ہم 15 دن پہلے دلی سے ہمارے پاس کتابیں تھی، اس کے باوجود بھی 15 دن پہلے ہم دلی سے جا کر کے لائے اور ان کے مکتب سے ہم نے بل بنوایا اپنے نام کا، تاکہ یہ ہم پر الزام دیتے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر لاتے، تو یہ ان کے مکتب کی چھپی ہوئی ہے، دارالکتاب دیوبند، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، دیوبند کی چھپی ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے حضور کے علم کو کہا کہ جتنا علم بچوں کو ہوتا ہے اتنا علم رسول اللہ کو ہے، جتنا علم پاگلوں کو ہوتا ہے اتنا علم رسول اللہ کو ہے، اور جتنا علم جانوروں کو ہوتا ہے اتنا علم رسول اللہ کو ہے۔ یہ انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے، یعنی یہ بھی مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کتاب ہے براہین قاطعہ، براہین قاطعہ کا صفحہ نمبر 121 ہے۔ اس کے مصنف کا نام ہے مولوی خلیل احمد امبیٹھی، یہ بنیادی فاؤنڈر لوگ ہیں دیوبندیت کے۔ یہ براہین قاطعہ، براہین قاطعہ میں یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یعنی دیوار کے پیچھے کیا ہے یہ حضور کو نہیں معلوم، یہ علم غیب کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد کتاب ہے تقویۃ الایمان فی الوحید، اس کے صفحہ نمبر 31 پر لکھا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ، یعنی لڑکا ہے یا لڑکی، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو نہیں معلوم، اور اس میں یہ قرآن شریف کی سورہ لقمان کی آخری آیتیں تلاوت کر کے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس میں بیان کیا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ یہ اس کتاب نے حضور علیہ السلام کے علم کا انکار کیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، میں نے آپ کے سامنے تقریباً 4 کتابوں کے حوالے سے 5 عبارتیں بیان کی کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں۔ اگر حضور کے بارے میں آپ علم غیب مانیں گے تو آپ مشرک ہو جائیں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ جب آدمی ان کتابوں کو پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں، اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں، اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں، تو آدمی سوچتا ہے یار یہ لوگ اللہ کے کتنے ماننے والے ہیں، کتنے توحید پرست ہیں یہ لوگ کہ اللہ کے سوا یہ کسی کا علم غیب مانتے ہی نہیں۔ لیکن اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں کہ اگر رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا، اگر رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا تو آپ مجھے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسان کیا کوئی دنیا میں پیدا ہوا؟ اللہ کے بعد اگر سب سے بزرگ ترین کوئی ذات ہے اس دنیا کے اندر تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اللہ خالق ہے اور مخلوق میں مصطفیٰ جان رحمت سب سے افضل ترین ہے۔ تو جب رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا تو دنیا میں کسی کو علم غیب نہیں ہونا چاہیے تھا، یہی بات ہے نا۔ جب حضور کو علم غیب نہیں تو پھر کسی کو علم غیب نہیں، کیونکہ اللہ نے جو چیز اپنے نبی کو نہیں دی وہ چیز اللہ نے کسی کو نہیں دینا تھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں انبیاء کرام کے اندر انفرادی طور پر چیزہ رکھی تھی وہ ساری چیزوں کو اللہ نے اپنے محبوب میں جمع فرما دی۔ کوئی ایسی نعمت، کوئی ایسی خوبی جس کا نام خوبی ہو سکتا ہے وہ ہر خوبی اللہ نے اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ علم غیب کسے کہتے ہیں وہ سمجھ لیا۔ علم غیب اس کو کہتے ہیں انسان کو اللہ نے 5 حص عطا کیے، 5 حص، ایک ہے دیکھنا، ایک ہے سننا، ایک ہے سونگنا، ایک ہے چکھنا اور ایک ہے چھونا، یہ 5 حص ہے۔ ان 5 حصوں کے علاوہ آدمی جس چیز کو معلوم نہ کر سکے، یعنی 5 چیزوں سے آدمی جو چیز معلوم کر لے وہ علم غیب نہیں، اور 5 چیزوں کو جہاں پر یہ 5 چیزیں جواب دے جائے، یہ 5 چیزیں کام نہ کریں، یعنی جس کو دیکھ کر معلوم نہ کیا جا سکے، جس کو سن کر معلوم نہ کیا جا سکے، جس کو چکھ کر معلوم نہ کیا جا سکے، جس کو سون کر معلوم نہ کیا جا سکے، جس کو چھو کر معلوم نہ کیا جا سکے، وہ کیا ہے؟ علم غیب ہے۔ یہ زمین کے اندر کیا دفن ہے یہ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ علم غیب ہے، کیونکہ وہ سنائی نہیں دیتا، وہ دکھائی نہیں دیتا، اس کو چھو نہیں سکتے، اس کو چکھ نہیں سکتے، اس کو سونگ نہیں سکتے، اس لیے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟
इल्म गैब है। इस स्टेज के पीछे क्या है, हम सुन नहीं सक रहे हैं उसको, जो चीजें हैं उसको देख नहीं पा रहे हैं, उसको छू नहीं पा रहे हैं, तो ये पीछे क्या है हमारे लिए इल्म गैब है। हमारी पीठ के पीछे, दीवार के पीछे क्या इल्म गैब है। अगर हम उसको देखने की ताकत रख लें तो फिर वो हमारे लिए गैब नहीं होगा, क्योंकि हम उसको देख रहे हैं। अभी ये हमारे लिए क्या है, गैब है। आपके बात समझ में आई? तो ये 5 चीजें क्या है, 5 चीजों से जिन चीजों को मालूम न किया जा सके, हवा से खमसा से जिसको मालूम न किया जा सके, वो इल्म गैब है। अब इनका अकीदा है कि अल्लाह के अलावा किसी को इल्म गैब नहीं, हत्ता कि हुजूर को भी इल्म गैब नहीं। एक बात देवबंदियों की बहुत गलत है, उसको आप समझ लें कि ये रसूलुल्लाह से ज्यादा अपने मौलवियों को और अपने मुफ्तियों को मानते हैं। देखो रसूल के बारे में ये कह रहे हैं कि माँ के पेट में क्या, ये भी नबी को नहीं मालूम, दीवार के पीछे क्या, ये भी नबी को नहीं मालूम। लेकिन अब इन्हीं की किताबों में क्या लिखा है, अब आप वो सुनिए और आप मालूम कीजिए कि देवबंदी मसलक अपने नबी से ज्यादा ये नबी को मानने का ढोंग करते हैं, लेकिन असल में ये मानते हैं मौलवियों को। जो इनके मौलवी हैं, जो अंग्रेजों के एजेंट बनकर इन्होंने हिंदुस्तान में फितना फैलाया, ये उनको मानते हैं। क्योंकि हम अभी ये भी बताएंगे आपको कि ये अंग्रेजों के एजेंट थे या नहीं थे, इन्हीं की किताबों में। अगर देवबंदी हजरात सुन रहे हो, उनको एतराज हो, वो स्टेज पर आए, हम जिम्मेदारी लेते हैं, हमारा कोई सुन्नी नौजवान उनको हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन वो हक समझ लें। अगर उनको हवाला गलत लगता है तो आकर के देख जाएं, किताब में देख जाएं, हम गलत पढ़ते हैं, वो निशानदेही करें। हम जिम्मेदार हैं, आप आएंगे आपको कोई टच नहीं करेगा, लेकिन हक समझो, हक समझो। रसूलुल्लाह के बारे में इल्म गैब का इनकार करने वालों और उम्मत को लड़ाने वालों, अब तुम्हारी ही किताब है, ये किताब है, इसका नाम है, 2 नाम है इसका नाम पहले इन लोगों ने रखा था अरवाहे सलासा। अरवाहे सलासा पहले इस किताब का नाम रखा था। सुन्नियों ने जब इस किताब की चोरी पकड़ ली तो इन्होंने किताब का नाम बदल दिया और नाम रखा हिकायात औलिया। फिर भी हम इसको खरीद लाए। अरवाहे सलासा जो थी वो भी वही है, हिकायात औलिया थी वो भी वही है। ये किताब है हिकायात औलिया। इसके मुसन्निफ है हकीमुल उम्मत मौलवी अशरफ अली थानवी। इसमें लिखा है मौलाना अशरफ अली थानवी। और ये कुतुब खाना नईमिया देवबंद, ये देवबंद से छपी हुई है। इसका जो बिल है ये हमारे पास मौजूद है, इसका बिल भी हमारे पास मौजूद है। जिसको देखना वो देख सकता है कि हम इन्हीं की दुकान से खरीद करके लाए। अब देखो यही आदमी है ना, यही अशरफ अली थानवी है। इसने क्या लिखा था कि रसूलुल्लाह को इल्म गैब नहीं है, और हुजूर को जितना इल्म गैब है उतना इल्म गैब तो पागलों को भी होता है, बच्चों को भी होता है और जानवरों को भी होता है। अब यही आदमी है, रसूलुल्लाह की बात आई तो इल्म गैब मानने को इसने शिर्क कहा। अब यही आदमी क्या कहता है, सुनिए। हिकायात औलिया सफा नंबर 184-85। देखो सफा नंबर बदलता रहता है। क्यों बदलता है कि अलग अलग प्रेस से किताब छपती है तो सफा नंबर बदलता है। लेकिन हिकायत नंबर 147 ये हिकायत है। आप देख लें इसको, फिर मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। अब आप देखें, जो नबी के इल्म गैब का मुनकिर है वो अपने मसलक को ऊंचा दिखाने के लिए देखिए क्या लिख रहा है। खान साहब ने फरमाया, मौलाना नानोतवी फरमाते हैं। मौलाना नानोतवी कौन? मौलाना कासिम नानोतवी, जो देवबंद मदरसे के बानी और फाउंडर थे। वो कहते हैं, खान साहब ने फरमाया कि मौलाना नानोतवी फरमाते थे कि शाह अब्दुल रहीम साहब विलायती के एक मुरीद थे। यानी ये अभी पीर की बात नहीं हो रही है, इनके मसलक के मुरीद की बात हो रही है कि अब शाह अब्दुल रहीम साहब विलायती के एक मुरीद थे जिनका नाम अब्दुल्ला खान था, और वो कौम के राजपूत थे। यानी वो पैदाइशी मुसलमान भी नहीं थे, वो नौ मुस्लिम थे, राजपूत थे कौम के। और क्या था फिर, ये हजरत के खास मुरीदों में से थे, यानी शाह अब्दुल रहीम के खास मुरीदों में से थे वो राजपूत साहब। उनकी हालत ये थी कि अगर किसी के घर में हमल होता, वो तावीज लेने आता तो आप फरमा दिया करते थे कि तेरे घर में लड़का होगा या लड़की। जो आप बतला देते थे वही होता था। देखें, रसूलुल्लाह के बारे में लिखा है कि रसूलुल्लाह को भी नहीं मालूम कि माँ के पेट में क्या है, और इनका पीर नहीं, इनका मुरीद, इनके मुरीद को मालूम है कि माँ के पेट में लड़का या लड़की, और वो जिसको कह देता कि इसके पेट में लड़का है या लड़की, तो जो कह देता वही होता। यानी नबी को इल्म गैब मानो तो मुशरिक हो जाओ, और इनके मुरीद को, अभी मौलवी भी नहीं है, ये मौलवी भी नहीं है, ये जात का राजपूत है,
नौ मुस्लिम है, मगर इसका हुनर ये है कि ये देवबंदियत का मुरीद है, इसलिए इसकी शान में इल्म गैब मान लिया गया। अब आप मुझे बताएं कि सुन्नी जो इतना जो है वो सख्ती करता है और इतना गुस्से में आता है इन पर, तो वजह यही है कि ये अपने मुरीद को जिस लायक बताते हैं उस लायक भी ये रसूलुल्लाह को नहीं मानते। हम नबी को इल्म गैब माने तो हम पर शिर्क का फतवा दिया जाता है और ये अपने मुरीद को माने। देवबंदियों में हिम्मत है तो वो बता दे कि ये हिकायत औलिया उनकी किताब नहीं है। अगर ये किताब तुम्हारी नहीं है तो तुम ऐलान कर दो कि ये किताब हमारी नहीं है। और अगर किसी के लिए इल्म गैब मानना खुदा के अलावा शिर्क है तो मानो, लिख करके दो कि अशरफ अली थानवी मुशरिक था, वो जहन्नमी था, ये लिख करके दो, ये बताओ। ये हमारे पास किताब मौजूद है। और अगर तुम इस तरीके से अवाम को धोखा दोगे तो हम अवाम को बताएंगे, ऐ नौजवानों, तुम कहां इनके चक्कर में पड़े लड़ रहे हो, आपस में सर फुटव्वल कर रहे हो। याद रखो, अल्लाह ने तुम्हारे नबी को इतना गैब दिया, इतना गैब दिया कि उतना गैब किसी को नहीं दिया। अरे जब अपनी जात को न छुपाया तो कौन सी बात अल्लाह छुपा लेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शबे मेराज अपने महबूब को अपने कुर्ब में मिलाकर अपना दीदार कराया। और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो बना जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। फर्क इतना है, इल्म गैब वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। हम इल्म गैब नबी और वली के लिए मानते हैं और ये इल्म गैब अपने मुल्ला और मुरीदों के लिए मानते हैं। अब समझ में, जो जिसको चाहता है वो उसके गुण गाता है। ये किताब है। अब मैं एक सवाल करता हूं। ये तक़वियतुल ईमान है और ये हिकायत औलिया है। ये दोनों किताब उन्हीं के घर की है। अब इसमें लिखा है कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब नहीं, और अल्लाह के अलावा किसी को इल्म गैब माने तो आदमी मुशरिक हो जाता है। और इस किताब में इल्म गैब को साबित किया है। तो देवबंदी बताएं, ये किताब सही है या ये किताब सही है, ये मौलाना सही है या ये मौलाना सही है। और अगर आप कहते हैं दोनों सही है तो आपको हम कहेंगे कि आप फिर दोगले हो, और दोगले का नाम कुरान ने मुनाफिक रखा है। यही तो है। और अगर दोनों किताब सही है तो ये दो किताब सही कैसे हो सकती है। इल्म गैब के मानना शिर्क है, तो जो या ये दुरुस्त होगी या ये दुरुस्त होगी, ये बताया जाए। ये आपने सुन लिया, ये आपने देख लिया। अगर किसी को शक है, यहाँ पर किताब आधे घंटा 1 घंटा जितना आप कहेंगे हम यहाँ रख जाएंगे और यहाँ जिम्मेदारान होंगे। आपको आना है तो आकर आप देख सकते हैं। एक बात हुई। अब आप दूसरी चीज में आपको दिखाऊं, तवज्जो फरमाएं। आज मौका मिला है तो आपको बता देते हैं, ताकि फिर आप जो है वो बाद में मत कहिएगा कि हमें नहीं पता चला था, हमारा ईमान किसी ने बचाया नहीं। आप देख लीजिए, ये रोटी बोटी का झगड़ा नहीं है, ये ईमान और कुफ्र का झगड़ा है। अगर आप इसको लाइट लेंगे तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। अब आइए, ये भी कहते हैं कि हुजूर को इल्म गैब नहीं, आपने देख लिया। तो ये इनकी किताब है मलफूजात हकीमुल उम्मत। हकीमुल उम्मत, ये हकीमुल उम्मत वही है।